students. I'm Abhilash Rajput from Rose Public Schools, Delhi. So, let's have a glance over the chapter resources at its final attempt. Okay. Now, I think we had already almost covered the concepts related to the resources, but some of the points that needs to be pondered once again so that you could able to understand the importance of that terms. So, amongst them, you already, I think I need not to explain that what is resources. Okay. So, we also had learned about the classification of resources. Classification of resources has to be carried out on the basis of origin. On the basis of origin, we had come to understand that it is to be carried out on the basis of biotic, abiotic, है ना? ठीक है? ये तो आपको पता चल गया? Okay. Then on the basis of utility, मतलब उसकी उपयोगिता के आधार पे. So that is your renewable and non-renewable. ठीक है? Non-renewable. Got it? So, level of development, on the basis of level of development, that is you had developed and potential. Then on the basis of ownership, it is on individual base, community based, your national based and your international based. Okay. On the basis of distribution, that is your localized resource and the ubiquitous resource. So we already had cleared the meaning of these terms: biotic, abiotic, renewable, non-renewable, developed, potential, individual, community, and all this localized and ubiquitous resources. What now? One thing you are just also looking over here, that this classification has been carried out on the basis of specific categories, like on the basis of origin, on the basis of utility, on the basis of level of development, on the basis of ownership, then distribution. It is important to classify the resources in such a manner because this would able to tell us about the availability of resources with us and our requirements related to the specific resources and how much we have, how much shortage we have of particular resources, or how much resources are in abundance, okay, so that we could able to utilize them as according to that. Okay. It helps the categorization of these resources and the classification of these resources helps us to manage the availability of resources, not only for the need, not only to fulfill the needs of present generation, but also to fulfill the requirements of future generation. So that is why Start. so resource planning is done only to manage the resources so that the availability of resources can be well planned and well utilized. Got it? So that is the one point. Now the second point is, now you are also looking that for development, one thing you definitely got to understand, that development is to be carried out on the development of the country is completely relied upon the availability of resources. Okay. So, and not only the availability of resources, but our potential to utilize these resources to fulfill our requirements. So what happens now, as we are in the age of advancements, in the age of technological advancement is there. So what happens sometimes, what we are utilizing these resources very indiscriminately, बिना सोचे समझे हम संसार. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. आपको अब ये बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, थोड़ा सा मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल समझाता हूँ, उसके आधार पे आपको ये सारी प्रोसेस समझ में आ जाएगी. आपके घर में पानी आता है, टैप में पानी आता है. अब आप देखिए,
गर्मियों के दिनों में अब पानी की ज़रूरत तो हमें हमेशा रहती है, वाटर इज़ अ वेरी इसेंशियल रिसोर्स टू अस, ठीक है, तो वो हमारे जीवन का एक आधार है। लेकिन अब आप ये देखिए, गर्मियों के दिनों में हमें प्यास ज़्यादा लगती है गर्मी के दिनों, और उस समय पानी की शॉर्टेज आ जाती है। लेकिन चलो वो एक उसका एक अलग कारण है। लेकिन अब आप देखिए कि हम लोग उस रिसोर्स को इस्तेमाल कैसे करते हैं। कई बार हम लोग जितना हमें पानी चाहिए होता है, हम उस पानी को स्टोर भी कर लेते हैं, टैंकी वगैरह में किसी में भी स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग उस पानी में पाइप, मतलब नलके में अपने कनेक्शन में पाइप लगा के उसको हम अपने किंडरगार्टन में ऐसे फेंक देंगे। या पानी बह रहा है, टैप बाल्टी भर चुकी है पानी की, लेकिन पानी बह रहा है, वी डू नॉट बॉदर अबाउट इट, ठीक है। हम लोग अननेसेसरी पानी का मिस यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको अपने खेतों में लगा देंगे, ठीक है, बिना ये सोचे कि अगर हम लोग इसको कंट्रोल कर लें तो शायद ये पानी किसी और की जरूरत के लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, जिसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, ठीक है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं सोचते। हमारी सोच कहाँ रह जाती है कि वी आर पेइंग अ बिल, कि हम तो बिल पे करते हैं, ठीक है। तो ऐसी सोच की वजह से क्या होता है, वो रिसोर्स जो है वो बहुत मिस यूज़ हो रहा है, उसकी बड़ी मिसमैनेजमेंट हो रही है। और उस मिसमैनेजमेंट की वजह से क्या होता है कि वो जो रिसोर्स यहाँ पे, वो उस रिसोर्स का जो फुलफिलमेंट है किसी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, वो वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा, वहाँ पे वो पर्टिकुलर तरीके से एक सही मायने में वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग, हमारे एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे हो रही होगी तो वहाँ की गवर्नमेंट जाने, या वहाँ का डिपार्टमेंट जाने, या वहाँ के लोगों की सिरदर्दी। लेकिन ऐसी सोच गलत है, ठीक है। और देखिए यही वजह है, अब एक इसी से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड, ये आप अपने गांव, हम लोग ऑलमोस्ट सभी विलेज कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं ऑलमोस्ट हमारे स्कूल में। तो अब आप ये देखिए, आप अपने गांव में कुएं बावड़ियाँ वगैरह देखते हैं, हम लोग उनको कंजर्व नहीं कर रहे, वी आर नॉट स्टोरिंग देम, वी आर नॉट कंजर्विंग देम, ठीक है, हम उनको संरक्षण नहीं कर रहे, है कि नहीं। क्यों नहीं कर रहे नेग्लिजेंस? क्योंकि आज हम फैसिलिटेट हो चुके हैं, आज हमारे घरों में नलकों में पानी आ रहा है, तो हम लोग ठीक है यार, क्या जाना, कौन पिएगा, कौन जाएगा, कौन सफाई करेगा, मैं करूँगा तो बाकी नहीं करेंगे, कौन सिरदर्दी ले अब, ठीक है। तो हमारी ऐसी सोच जो है, और इस तरह की हमारी एक आगे के लिए, फ्यूचर के लिए हमारे पास रिसोर्स प्लानिंग नहीं है। हमारा रिसोर्स प्लानिंग मैनेजमेंट जो है वो वीक है। वो किस लिए वीक है? जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ आवर लैकिस्टिकल एटीट्यूड एंड आवर इनडिस्क्रिमिनेट वे ऑफ यूजिंग आवर रिसोर्सेज। हम बिना सोचे समझे लापरवाही में जब हम अपने संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो आज बेशक हम अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में हमारी खुद की जनरेशन जो है उसे इन सब विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। तो सेम यही चीज़, इसीलिए ये रिसोर्स चैप्टर आपको भी समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, कि किस तरह से हमें रिसोर्स मैनेजमेंट जो है उसे वो मैनेज और मेंटेन करने में हमारी मदद करता है, ठीक है। अब ये एक पॉइंट, नाउ यू ऑलरेडी हैड स्टडीड अबाउट द बायोटिक, अबायोटिक, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, डेवलप्ड एंड पोटेंशियल। आई थिंक वी हैव स्किप्ड ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। अब देखो, ऑनरशिप का मतलब मालिकाना आधार पर संसाधनों का विभाजन। जैसे इंडिविजुअल है, अब इंडिविजुअल कैटेगरी में क्या आता है, जैसे ये मेरा खेत है, दैट इज मेरा खेत मीन्स वो मेरा है, वो रिसोर्स मेरा है, उसको सिर्फ मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो क्या, इंडिविजुअल रिसोर्स। देन कम्युनिटी रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, गाँव में एक कुआं है, अब उस कुएं में सभी पानी भर रहे हैं, ठीक है, उस कुएं में जाते हैं, सभी पानी भरते हैं, पानी निकालते हैं, उसकी साफ सफाई करते हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, तो दिस इज कम्युनिटी रिसोर्स, ठीक है। अच्छा, जैसे अगर आप देखें, कई लोग पीपल के पेड़ पे पूजा करने जाते हैं, तो वहाँ पे ये नहीं होता कि ये पेड़ मेरा है, यहाँ पे कोई पूजा नहीं करेगा, वहाँ पे सभी आते हैं, सभी हर व्यक्ति, हर कम्युनिटी का व्यक्ति जो है वहाँ पे आके पूजा करता है। सो मंदिर हो गए, ठीक है, सो दीज आर द कम्युनिटी रिसोर्सेज। उसके बाद आ गया आपका नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज जैसे देश, ठीक है, बाउंड्रीज, हमारी कंट्री, ठीक है, तो दैट इज नेशनल रिसोर्स, ठीक है। देन कम्स योर इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स में आता है जैसे फॉर एग्जांपल अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अब अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में किसी भी कंट्री का कब्जा नहीं है वहाँ, ठीक है। तो वो एक सभी देशों का एक समझौता हुआ है वहाँ पे,
जिसके तहत हर कंट्री जो है वो अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट को अपनी एक साइंस से जुड़े अपने रिसर्च वर्क को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, वहाँ पर अपनी लैब जो है वो इस्टेब्लिश कर सकती है। एवरी कंट्री कैन एस्टेब्लिश देयर लैबोरेटरी ओवर हियर, ठीक है, फॉर टू कंटिन्यू टू परस्यू देयर एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है, ऑन द अवेलेबल ऑन वट एवर फील्ड दे वांट टू गेट इट गेट ऑन विद द एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, दे कैन डू इट ओवर देयर, ठीक है। नन ऑफ द कंट्री वुड हैव क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्शन ऑन एनीबॉडीज इन्वॉल्वमेंट ओवर देयर, ठीक है, सभी को राइट है वहाँ पर, ठीक है। तो वो क्या है, इंटरनेशनल रिसोर्स है। जैसे उसी तरह से अगर आप देखेंगे जो आपका बहुत आप न्यूज़ में नाम सुनते हैं, पैसिफिक इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशंस के नीचे जो एक काफ़ी दायरा है जिसे साउथ चाइना सी भी बोला जाता है, ठीक है, वो चाइनीज़ वो जो समुंदर है वो भी एक इंटरनेशनल जोन में आता है, ठीक है। वहाँ पे भी किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का उस एरिया में जो है कब उस समुद्र के एरिया में जो है कब्जा नहीं माना जाता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड, तो इस तरह से इन चीज़ों को हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज के रूप में जानते हैं। सो आई होप यू वुड हैव क्लियर इट। नाउ द थिंग इज, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इज अबाउट द डेवलपमेंट, ठीक है। तो मैंने अभी आपको डेवलपमेंट का एक एग्जाम्पल भी बताया था कि किस तरह से द वे वी आर इनडिस्क्रिमिनेटली यूजिंग द रिसोर्सेज, ठीक है, विदाउट कंसिडरिंग द पॉइंट इन आवर माइंड दैट इट वुड बी हार्मफुल फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। सो टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस टू कंजर्व द रिसोर्सेज। दूसरी बात, एक और टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको हम सतत विकास प्रक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। मतलब इसमें यह है कि डेवलपमेंट तो ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट का आधार ऐसा होना चाहिए, टेक्नोलॉजी की जो यूटिलाइजेशन है वो इस तरह से होनी चाहिए कि उसका असर इन्वायरमेंट पे ना पड़े, पर्यावरण पे उसका गलत असर नहीं पड़ना चाहिए। हम अपने संसाधनों को इस तरह से इस्तेमाल करें कि ना तो उसका पर्यावरण पे नुकसान हो और हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से जो इस तरह का जो पाथ है, जो इस तरह का जो प्रोसेस है, उसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं कि आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करिए लेकिन उसको इस तरह से करिए कि उसका ना तो इन्वायरमेंट पे प्रभाव पड़े, गलत प्रभाव पड़े, और ना ही लोगों की लाइफ को जो है उसके ऊपर कोई गलत असर पड़े। तो दिस इज द और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो मुख्य आधार होते हैं वो ये होते हैं कि लोगों को एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक करना, कि उनका एनवायरनमेंट के प्रति, उनकी नेचर के प्रति उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, ये उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन्हें किस तरह से नेचर को, क्योंकि अगर आज आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे तभी आप कल को इसकी इम्पोर्टेंस को भी समझ पाएंगे और आप इसके लिए इसका जो यूटिलाइजेशन है वो जो इसका जो आउटकम होते हैं जो नेचर हमें देती है इन रिटर्न, ठीक है, वी कुड एबल टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो ये चीज़ें समझनी बहुत ही ज़रूरी हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें यही बताना चाहती है। अब देखिए, और वो बताती है कि हर एक व्यक्ति का एक जो पर्यावरण के संरक्षण में उसका जो रोल है वो कितना इम्पोर्टेंट, वो कितना महत्व रखता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। हमसे ज़्यादा मुझे लगता है आज की जनरेशन से ज़्यादा जो हमारी पहले की जनरेशन थी, हमारे दादा परदादा के टाइम की और उनसे भी पहले की जनरेशन्स, they were very responsible towards their duty, towards the duty assigned to them towards the nature। वो इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा सशक्त थे, उनकी भूमिका बड़ी सशक्त थी और वो लोग इन चीज़ों को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ निभाया भी करते थे। अब देखिए, आप गांव में आप देखते हैं कि बहुत सारे यज्ञ वगैरह करवाए जाते हैं, ठीक है, बड़े कॉमन प्लेस में वो यज्ञ होते हैं, वहाँ पे सभी लोग आते हैं, ठीक है, चावल लेकर आते हैं, वहाँ पे देते हैं, देखा है ना आपने, ठीक।
तो ये परंपराएं हमारे पुराने समय से चलती आ रही हैं, ठीक है। वी आर यूजली गॉट टू बी इन्वॉल्व ओवर देयर, हम लोग वहाँ पे जाते हैं, अपना शेयर देते हैं, और वहाँ पे लोग बड़े एक अच्छे भाव से, कुछ लोग वहाँ पे सेवा वगैरह भी करते हैं, देवर रेंडरिंग देयर सर्विसेज। हमारे बुजुर्गों ने ये चीज़ किस लिए चलाई थी? उनका इसके पीछे ये कारण था कि साल में जब लोग एक धर्म के आधार पर उन्हें एक ऐसी ओकेशन क्रिएट करनी, एक पर्टिकुलर उस धार्मिक मतलब एक जगह में, एक पर्टिकुलर प्लेस में, यहाँ वो जगह जो है वो हमेशा कुएं या बावड़ी के पास होती थी। लोग वहाँ पे जाया करते थे, इकट्ठे होते थे, ठीक है, और वहाँ पे वो एक सेरेमनी को ऑर्गेनाइज करते थे जिसे हम यज्ञ कहते हैं। पर यज्ञ ऑर्गेनाइज करने से पहले एक दिन पहले सभी लोग वॉलंटियरली आते थे और उस कुएं और बावड़ी को जो है साफ किया करते थे, ठीक है। और अगले दिन जो है सभी वहां पर अपना खाना वगैरह खाते, जो भी भोज होता है उसको खाते और फिर चले जाते। तो ये एक ऐसा प्रोसेस था, क्योंकि अगर हम ऐसे बोलेंगे, अगर ऐसे किसी को बोलेंगे तो वो एक बार आएगा, दो बार आएगा, लेकिन उसके बाद उसकी वो जो चेन है वो टूट जाएगी। लेकिन उन्होंने उस चीज को धर्म के साथ जोड़ा, ठीक है, कि हमारे धर्मों के अनुसार हमें यहाँ पे आना चाहिए, ये हमारे अच्छे के लिए होगा। और इस तरह से लोग जो है अपनी धार्मिक फीलिंग, एक रिलीजियस फीलिंग के आधार पर ही सही वहाँ पे आते हैं। आज तक ये चीज़ें चलती आ रही हैं, आज भी यज्ञ हो रहे हैं। लेकिन आयरॉनिकली आज आप एक चीज़ देख रहे हैं, आजकल यज्ञ तो नहीं टूटे, लेकिन वहाँ पे अब नलके लग गए, टैंकर आ जाता है। हाँ, कुएं और बावड़ियाँ वहाँ पे वो सूख गई हैं, वो डैमेज हो चुकी हैं, नल लग गया वहाँ पे। जब टैंकर में पानी आ जाएगा, लोग इकट्ठे होंगे, ताश खेलेंगे, ठीक है, अपना थोड़ा सा एंजॉयमेंट का, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म, ये सब उल्टी पुल्टी बातें चलती हैं और उसके बाद सब चले जाते हैं। आज के टाइम में हालांकि हम एक एजुकेटेड रीजन टाइम पीरियड में अपने आप को, अपनी लाइफ को लेके चल रहे हैं, लेकिन हमारा जो सोच का नज़रिया है, जो हमारी जो सतत प्रक्रिया होनी चाहिए हमारी सोच की, वो अभी हम लोग काफ़ी बैकवर्ड चले गए। उसमें हमारे बुजुर्ग जो थे वो हमसे काफ़ी एडवांस थे और हम लोग पीछे चले गए। आज हम उस यज्ञ को जिसमें हमें फ़ायदा मिलना है उसको नहीं कर रहे, कमेटियाँ बन जाती हैं, वी आर जस्ट फिक्स द शेयर ऑफ इंडिविजुअल कि 200 रुपये डालेगा, 500 रुपये डालेगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, कमेटी बन जाती है। एंड एवरीबडी गोज ऑन दिस फैक्ट कि ये पैसा किसके पास है, किसके पास नहीं है, ठीक है। बट नॉन ऑफ देम गॉट टू बी बॉदर्ड अबाउट द थिंग्स कि उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है इस यज्ञ को करवाने के लिए। ये बुजुर्गों के द्वारा ये डिजाइन किया गया था, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोसेस है, ठीक है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोसेस की एक एग्जाम्पल था। लेकिन आज की जनरेशन ने उनको तोड़ दिया, ठीक है। तो ये हमें, अब अगर आप ये चीज समझ रहे हैं तो आपको समझना है, आगे आपको भी ये कदम उठाने हैं, ठीक है, स्टॉप इट, ठीक है, और आपको खुद आगे आकर इन सब चीजों को संभालना होगा। नहीं तो अदरवाइज एक टाइम आएगा कि वी आर कंप्लीटली डिप्राइव्ड आवरसेल्व्स फ्रॉम दिस वन ऑफ द एसेंशियल रिसोर्सेज। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इसी के साथ और मैं लास्ट में आपको एक ऐसे ही एक शख्सियत का नाम बताता हूँ who had played a very great role especially in the field of environment. His name was विजय पाल बघेल। विजय पाल बघेल, इनका जन्म 1967 में हुआ था और he is a person who had completely devoted his whole life especially for the sake of environment, for the protection of environment. इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है जिसके तहत इन्होंने कपिल वृक्ष जो है दुनिया के हर बड़े तीर्थ स्थल पे इन्होंने कपिल वृक्ष को के पौधों को लगाया। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, ठीक है, टू अट्रैक्ट द पीपल टुवर्ड्स द नीड ऑफ protecting the environment through a very small process, just from the small deeds
ठीक है, दैट कन्फर्स टू द इंडिविजुअल लेवल। ठीक है, एक इंडिविजुअल लेवल पे हम ये नहीं बोलते यार, हम ये इट इज़ वेरी इजी टू ब्लेम द गवर्नमेंट्स। ठीक है, व्हाट इट इज़ आवर सोलेमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी निजी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग इस पर्यावरण को में अपनी भूमिका को निभाएं। तो उन्होंने ये चीज़ की, वो भी एक नॉर्मल घर से थे, कोई मध्यम वर्गीय परिवार से थे। ठीक है, और उन्होंने पौधों को, ठीक है, पौधों से रिलेटेड बहुत सारी बातों को लेकर उन्होंने अपने समुदाय को, अपने समाज को, देश के विभिन्न हिस्सों में जाके लोगों को जो है जागरूक करवाया। ठीक है, अवेक द पीपल। और उन्होंने इसके लिए एक समिति भी बनाई थी जिसका नाम था पर्यावरण सचेतक समिति। ठीक है, पर्यावरण सचेतक समिति 1993 से, 1990 सिंस फ्रॉम 1993। ठीक है, इनकी एक्टिवली पार्टिसिपेशन से जो है ये एक he became a renowned personality in this field। ठीक है, and he was known by the name of ग्रीन मैन, इन्हें ग्रीन मैन के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ऐसा है, इस तरह की शख्सियत होती हैं, हमें भी ऐसे लोगों से, ऐसी शख्सियत से प्रेरणा लेनी चाहिए। ठीक है, इन्हें अपना एग्जाम्पल बनाना चाहिए। ठीक है, और हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना चाहिए, चाहे वो पर्यावरण के प्रति हो, चाहे अपने परिवार के प्रति हो, और चाहे समाज के, और चाहे देश के। ठीक है, सो आई होप विद दिस चिल्ड्रन आई एम क्लोजिंग दिस सेशन। ठीक है, सो वी हैव फिनिश्ड द होल चैप्टर थॉरली, कंप्लीटली। ठीक है, सो अब आपने जो है अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको वीडियो में सेंड कर दूंगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज में आप उन्हें करेंगे। Okay, thank you very much.